آج کا مقالہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس کا عنوان ہے فسانہ آزاد کی تہذیبی فرہنگ۔ مقالہ نگار ہیں عبدالرشید صدیقی اور نگران مقالہ ہیں پروفیسر منظر عباس نقوی۔ تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جانتے ہیں الفاظ یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتے بلکہ کسی ضرورت کے پیش نظر جب موجودہ الفاظ ہمارے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرنے میں قاصر ہوتے ہیں تو ایک نیا لفظ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ ضرورت کے ایجاد کردہ ہیں، مگر لفظ کو کسی زبان و ادب کا جزو بننے کے لیے مدتیں اور صدیاں درکار ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے اسے ایک لسانی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لسانی عمل کے تحت لفظ کی تراش خراش اور اس طرح سے اس لفظ کی ہوتی ہے۔ اس طرح لفظ جو ہے وہ گھس پٹ کر اسی زبان کے دیگر الفاظ سے ہم آہنگی حاصل کر کے اس کے معنی اور مطالب اور اسی لسانی عمل سے بھی بحث کرتے ہیں۔ اسے لغت سازی، فرہنگ، ڈکشنری وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں لغت و فرہنگ دونوں کو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرہنگ آصفیہ میں فرہنگ و لغت کے کچھ تشریح اس طرح سے کی گئی ہے۔ فرہنگ فے، جس کا مطلب ہے دانش، دانائی، سمجھ، عقل و ادب، فہم و فراست۔ دوسرا کتاب لغات فارسی جیسے فرہنگ رشیدی، فرہنگ جہانگیری وغیرہ۔ تیسرا لغت یعنی کسی قوم کی زبان، بولی، بھاشا، جس کے وسیلے سے آدمی اپنا مطلب اور غرض یا اغراض یا مطالب کو بیان کر سکے، یعنی کہ وہ الفاظ جس کے معنی مشہور نہ ہوں۔ لفظ، شبد، کلمہ مفرد، اس سارے کو بھی فرہنگ، ڈکشنری، کوش، کتاب، لغت، یہ ہے جی نمبر 4۔ اس تشریح میں فرہنگ و لغت ہم معنی نظر آتے ہیں، لیکن اگر لغت و فرہنگ کا ہم عمیق مطالعہ کریں تو فرق واضح ہوتا ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ لغت اور فرہنگ دونوں میں الفاظ کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے، مگر فرہنگ کا طریقہ کار لغت کے طریقہ کار سے زیادہ مخصوص اور مؤثر ہوتا ہے۔ فرہنگ کا دائرہ کار محدود ہوتے ہوئے بھی اپنے بہت زیادہ رنگا رنگی لیے ہوئے ہے۔ لغت میں کسی زبان کے بھی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ فرہنگ میں کسی لفظ کو اس کے مخصوص سیاق و سباق میں رکھ کر جانچا جاتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی خاص موضوع کے تحت کسی خاص زبان کے الفاظ کی لغت تیار کرتے ہیں تو ہم اسے فرہنگ کہتے ہیں۔ ہے نا کتنی دلچسپی والی بات۔ اچھا، فرہنگ نویسی اہل عرب کی دین ہے۔ عربوں نے قرآن مجید کے مختلف موضوعات، آیات، الفاظ وغیرہ کی تشریح کے لیے مختلف ناموں سے فرہنگیں مرتب کی۔ جدید طرز پر بہترین ڈائجسٹ کی شکل میں عربی زبان کی فرہنگ تیار کرنے میں کا سہرا محمد بن ابراہیم مجددین الشافی الشرازی الفیروز آبادی کے سر ہے۔ اس کی تیار کردہ فرہنگ القاموسی سے آپ اپنے دور میں بہت ہی مقبولیت انہوں نے حاصل کی، یہاں تک کہ القاموسی یعنی کہ جس کے لغوی معنی ہے سمندر، اس اصطلاح میں فرہنگ کے معنوں میں استعمال ہو گیا۔ القاموس تو زمانے کی نظر ہو گئی، مگر جدید یورپین فرہنگ نویسوں کے لیے اس نے مشعل راہ کا کام انجام دیا۔ اردو زبان کی کم عمری کا احساس سبھی کو ہے، اسی وجہ سے الفاظ کے ذخائر بھی محدود ہیں۔
इसी कमी के बिना पर फरहंगें वगैरह भी कम लिखी गईं। आमतौर पर उर्दू जबान में 3 तरह की फरहंगें तैयार की गईं। नंबर 1, आम फरहंग या लुगात, जिसे फरहंगे आसफिया, नूरुल गात, फिरोजुल लुगात, मुहज्जबुल लुगात वगैरह। अच्छा, नंबर 2 जो है वो मखसूसी शायर या अदीब के कलाम पर मुश्तमिल अल्फाज, मुहावरात, रोजमर्रा ज़रबुल इम्साल, इस्तिलाहात, मौज़ूआतो, उन्वानात के मानी और मुतालिब की फरहंग, जिसे फरहंगे अनीस, फरहंगे शफक, रूहे नज़ीर, फरहंगे गालिब की मुख्तसर फरहंग वगैरह हैं। और नंबर तीन जो है वो मखसूस मौजू, तबके या इलाके की जबान पर मुश्तमिल फरहंग, जैसे तलमीहात, उर्दू शायरी, लुगातुन निसा, नस्वा, मुहावरे, फरहंग मिसाल, फरहंग इस्तिलाहात, पेशावारान वगैरह हैं। इन मौजूदा फरहंगों पर गौर करने से एक ऐसी फरहंग की कमी महसूस होती है जो हिंदुस्तान की कौमी तहजीब का अहाता करती हो। तहजीब आप जानते हैं किसी भी समाज या मुआशरे की सोचो फिक्र, रस्म रवाज, शेरो अदब से मुरक्कब है। तहजीब नाम है उस विरसे का जो इंसान को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपने बुजुर्गों से मिलाता है, और उसमें फिर सिर्फ मिलाता ही नहीं है, उसमें बराबर का इजाफा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो इजाफा होता चला जाता है। ये तहजीबी सरमाया 2 तरह का है, एक मादी, दूसरा फिक्री। मादी तहजीबी सरमाए में वो तमाम अशिया आ जाती हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता रहा है, मसलन ज़रूफ, असला, औजार, मलबूसात, जो कि जैसे जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, पारचजात, जेवरात, जैसे कि ये मैंने जेवर पहना हुआ है, ये जेवर पहना हुआ है, और अशियाए खुर्दुनोश वगैरह वगैरह। अच्छा, तहजीब का फिक्री सरमाया वो है जिसके ज़ेल में फलसफाए हिकमत और अलूम, मजहबी मरासम, एतकादात और तोहम्मात वगैरह भी आती हैं। अदब समाज का अक्कास होता है, ये आप सब जानते हैं। किसी दौर की तर्ज मौशरत को समझने के लिए उस दौर का अदब सबसे ज्यादा मददगार और मुआवन साबित होता है। अफसानवी अदब को इसी एतबार से हम एक अहम मकाम देते हैं। खास तौर पर उर्दू दास्तानें ऐसे हजारों अल्फाज से भरी पड़ी हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करती हैं। इन दास्तानों में किस्सा चहार दरवेश, किस्से अज अमन दहलवी, फसानाए अजायब अज रजब अली बेग सरवर, उसके बाद दास्ताने अमीर हमजा और बोस्ताने ख्याल वगैरह काबिल जिक्र हैं। दास्तानी दौर के खात्मे पर अफसानवी अदब का एक शाहकार वजूद में आया जिसने दास्तानी रवायत को आगे बढ़ाया और अंग्रेजी नावल से हम आहंग किया। तो जनाब आप ये देखें कि वो कारनामा है कौन सा भला, फसानाए आजाद, दास्तान और नावल की दरमियानी कड़ी या कसीदे की इस्तिलाह में जिसको गरेज कहा जाता है। फसानाए आजाद पंडित रतन नाथ सरशार की मायानाज तसनीफ है। पंडित रतन नाथ लखनऊ के एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी तीनों जबानों में तालीम हासिल की थी। उर्दू उनकी अपनी मादरी जबान थी। जिंदगी की इब्तदा उन्होंने एक स्कूल के तदरीस से की और इसी दौरान अपने मज़ामीन मुख्तलिफ रसालों में भेजने लगे। 8 अगस्त 1878 को वो लखनऊ के मशहूर पर्चे अवध अखबार के मुदीर बना दिए गए। इसी अखबार में फसानाए आजाद दिसंबर 1878 से लेकर दिसंबर 1879 तक ज़राफ़त के कालम में किस्तवार शाया होता रहा। 1880 में मतबाए नो लखनऊ ने पहली बार मुकम्मल किताबी शक्ल में 4 जिल्दों में शाया किया। फसानाए आजाद एक ऐसा
पुर इंतशार दौर में लिखा गया, जब हिंदुस्तान नई अंग्रेजी हुकूमत से ही नहीं बल्कि एक नई तहजीब से भी दो चार हो रही थी। और ये फसाना उस दौर की जिंदगी का मजमुआ है जिसमें जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जो उसकी गिरफ्त से आजाद हो। इस दौर के इंसान की पसंद नापसंद, उसकी तर्ज मुअशरत, उसका रहन सहन, मलबूसात, पारचाजात, जेवरात, जवाहरात, अशियाए खुर्दोनोश, आदाब तआम, सामान्य आराइश और अत्रियात, आमदोरफ्त और मुख्तलिफ अक़साम की सवारियां, तफरीहात, तीतरबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, ताश और इस तरह की मुख्तलिफ जो है चीजें शामिल हैं। अगर हम समाजी ग्रोहबंदी और इम्तियाजात का भी बात करें, तकरीबात की बात करें, ईद की बात करें, दिवाली की बात करें, होली की बात करें, बसंत की बात करें, मुहर्रम की बात करें, तो ये सब कुछ भी उसमें शामिल है। अच्छा, अगर हम बात करें फनून लतीफ़ा के, गर्ज जिंदगी के हर शोबे के खूबसूरत मुरक्के इसमें वजूद में आए। फसाने आज़ाद मुकामी बोलियों, खसूसन लखनऊ की बेगमाती ज़बान, उनके मखसूस रोज़मर्रा के मुहावरात और इस्तिलाहात से भरपूर है। उर्दू अदब के मशहूर तनकीद नगार जनाब डॉक्टर सैयद एहतशाम हुसैन साहब ने फसाना आज़ाद के इसी तहजीबी पहलू पर खुसूसी तवज्जो दी और इस सिलसिले में वो रकम करते हैं कि उन्होंने लखनऊ की सिर्फ उस जिंदगी की तस्वीर कशी की थी जो लखनऊ के नवाबी मिटने के बाद एक रवायत की शक्ल में जिंदा थी। वो उसी जिंदगी को शुरू से आखिर तक जानते थे, हर तबके के लोगों से वाकिफ थे, सबकी बातचीत के ढंग जानते थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी हकीकत पसंदी से ऐसी तस्वीर कशी और ऐसी तस्वीरें खींच दी हैं जो उस तहजीब की कदर कीमत में बहुत ही मददगार साबित हुई। जनाबे वाला, तो ये मकाला जो है उसी तहजीबी सरमाए पर मुश्तमिल है। दौरे हाजिर में हमारे रहन सहन में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। फसाना आज़ाद में जिस तहजीब का तज़किरा है वो 100 साल या 125 साल पुरानी है, और वो अशिया जिनका इस्तेमाल उस जमाने में होता था और अब हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि अजायब खानों की जीनत बन चुकी हैं। यही वजह है कि फसाना आज़ाद और उसी दौर के दूसरे शेरी और नसरी जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, चाहे वो दास्तानें हैं या मसनवियाँ हैं, मरसिए हैं या कसीदे हैं, उनके समझने में तुलबा ही नहीं, उस्ताज़ा को भी उसमें माज़रत चाहती हूँ, दुश्वारियां पेश आती हैं। तो इस तरह से इस तरह की तफहीम का जो मसला है जूं का तुम बना रहता है, और यही इस जो मकाले का है मुद्दा है जो मैंने आपको पेश किया है। तो जनाब, ये था हमारा आज का क्या कहते हैं मकाला और उसकी तफसील और उसका तारुफ। और अगेन मैं आपको बताती जाऊं कि ये जो वीलॉग्स हैं जो आपको मैं आजकल पेश कर रही हूँ, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपकी मदद के लिए और आपके उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू ज़बान और अदब से मोहब्बत रखने वाले, उर्दू और हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ने वाले उनके लिए मेरी जल्द ही किताब जो है वो इंशाल्लाह ताला जुलाई एंड अगस्त के मिड स्टार्ट इन 2 महीनों के बीच में मार्केट में आ जाएगी। लाहौर से छप रही है, प्रेस में जा चुकी है, और मकसद इसका यही था कि जो मकाले जो हैं वो लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई है, और जो हमारे इंडिया की बहुत सारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिन भी तलबा और तालिबात ने उसका काम किया है, उसका तारुफ पेश किया जाए। फहरिस्त तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी लिखी हैं, बताई हैं, लेकिन उस मकाले को पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके उसका तारुफ के उस मकाले में
है क्या, उसके कितने चैप्टर्स हैं, उसको किस बारे में लिखा गया है, इस सारी की सारी तफसील को आप जो मेरी जिल्द अव्वल जामियात में उर्दू तहकीक के नाम से आ रही है, उसमें आप ये सब कुछ तफसील से पढ़ सकेंगे। अगेन नियरली 1000 सफ़े की ये किताब है, और अगर मैं एक्यूरेट बताऊं तो मैंने कहा है नियरली, तो ये 992 सफ़े की अब तक जो है, जिसका काम मैंने करके कंपाइल करके भेजा है पब्लिशर को, और पब्लिशर प्रेस में ले जा चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला आप फेसबुक पे भी, मेरे फेसबुक के गिमी टीवी फेसबुक का ऑफिशियल जो पेज है, उसके ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ तारुफ जो है वो मैंने शुरू किया हुआ है, उसका पेश करती रहती हूँ। और अपनी मोहब्बतों और अपनी दुआओं से, और मैं इंतज़ार करती रहूंगी। और गिमी टीवी से अगर आपको किसी भी मकाले की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम आपको पेश करती हैं। बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं उनको, मेरे एडमिन जो है वो, और जब मैं बजाते खुद भी, जब भी मुझे टाइम होता है, मैं वो सब आज तक जितने लोगों ने मुझसे पूछे, मैं उनको उनकी सॉफ्ट कॉपी भेज चुकी हूँ। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।